Good morning, all of you. Fundamental analysis from security analysis portfolio management subject. Topic fundamental analysis leverages. We have studied about operating leverage. Now we are starting with financial leverage. In financial leverage, the sources from which funds can be raised by a firm from the point of view of cost. Whenever you are raising money through debt, you'll approach the bank for the loan, and you'll ask some questions. What is the collateral I have to give? What is the cost of loan? What is the rate of interest you will charge us? So fixed financial charge means what is the rate of interest. The source of funds in the first category are debt, bonds, debentures, and preference shares. Long-term debt will carry a fixed rate of interest. You are going to pay rate of interest which is fixed. Dividend on preference share is not a contractual obligation. It is a fixed charge and must be paid. Anything is paid before paying to ordinary shareholders. You have to pay to preference shareholders. So first preference is given in profits to preference shareholders. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पहले प्रॉफिट्स दिया जाता है, लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को रिमेनिंग अमाउंट इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स. First we pay to debenture holder in the form of interest. Second, we pay to the preference shareholders in the form of dividend. Last, remaining profit is paid to the equity shareholders. So in the subsequent discussion, we will pay the dividend from the profit. We will deduct PAT minus preference dividend. We will get the net profit available for equity shareholders. The profits which are available for equity shareholders, we will find out by deducting the preference dividend from the PAT. Financial leverage results from the presence of fixed financial charges in the firm's income stream. These fixed charges do not vary with EBIT. Interest is fixed irrespective of money you are earning or you are making a loss. You have to pay this interest. Even if company is into the loss, but they have to pay the interest on the loan. They have to be paid regardless of the amount of EBIT. If you are earning or not earning, bank is going to charge you interest on every year basis. Financial leverage is concerned with the effects of changes in EBIT on the earnings available to equity shareholders. So we are going to make a relation of EPS and the EBIT. What company is earning and what company is making profits available for shareholders, equity shareholders. If you are getting a favorable financial leverage, that means company is having more funds to pay to their equity shareholders. Company is having good profits available after paying debentures and preference dividend. And what is the negative leverage? The firm does not earn much as the fund is having the cost. Okay, the firm is earning less and cost more. In that case, you will be having unfavorable negative leverage. So what is financial leverage? It is a relationship of EBIT and EPS. What company was earning before paying to anyone and what company is able to pay to their shareholders after paying everything, after paying tax, after paying preference dividend, what amount belongs to shareholder. जब पहले कुछ नहीं दिया था
उस टाइम की सिचुएशन और जब सब कुछ पे कर दिया उस टाइम की सिचुएशन, दोनों सिचुएशन का रिलेशन जब हम निकालेंगे तो हम लोग को इजीली हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हैं. The finance manager of hypothetical limited expects that EBIT in the current year would amount to rupees 10,000 and the firm has 5% bonds aggregating 40,000 while the 10% preference shares amounting to 20,000. So this is fixed cost on bonds. This is loan amount 40,000. Bond is nothing but a loan. You have issued a bond, that means you have taken a loan. 40,000 into 5%. Come on, calculate in the calculator. 40,000 का 5%, 2,000. 2,000 is the interest on the bond. You are going to pay the fixed interest. Out of EBIT, you will deduct 2,000 interest on the bond. Next is 10% of preference share amounting to 20,000. 20,000 का 10%. 20,000 का 10% preference dividend 2,000. 2,000 rupees. So after paying tax, after deducting interest, you will pay the tax of 35% as given in the question, tax rate 35%. And you will get preference dividend that you will deduct. You will get earnings available for shareholders, EPS. What would be the EPS assuming the EBIT being 6,000, 14,000? How would the EPS be affected? The firm is assumed to be in 35% tax bracket. The number of outstanding ordinary shares are 1,000. नंबर ऑफ शेयर्स दिया है ईपीएस निकालने के लिए और यहाँ पे बेस आपको लेना है करंट ईयर का अर्निंग्स. यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखिए करंट ईयर का ईबीआईटी क्या है. ईबीआईटी करंट ईयर कितना दिया है, यहाँ पर बीच में लिखना है उसको. करंट ईयर के प्रॉफिट को बेस बना के बीच में लिखेंगे और राइट साइड में प्लस 14,000 EBIT, न्यू EBIT 1 और 2 में दिया हुआ है. 10,000 से कम हो जाएगा तो 6,000 माइनस 40%. 10,000 से आगे बढ़ के 14,000, 40% इंक्रीज. So first case 40% increase, second case 40% decrease. Now, as you know, the interest on the bond we have calculated 5% on 40,000, that is 2,000. You are going to deduct 2,000 on all the columns, from all the columns. EBIT you will get, EBT you will get 4,000, 6,000 minus 2,000 interest, that is 4,000. 10,000 EBIT minus 2,000 interest on bonds, 8,000 EBT. 14,000 EBIT minus interest 2,000, 12,000 EBT. After deducting interest on bonds, the next step is to calculate the tax of 35% on the EBIT. 4,000 का 35% 1,400, 8,000 का 35% 2,800, 12,000 का 35% 4,200. After deducting the tax, you will get 2,600 earning after tax. 8,000 minus 2,800, 5,200. 12,000 minus 4,200, 7,800. Less preference dividend, 2,000. Yes. आपने कौन सा स्लाइड शो किया है? सम वाला नहीं दिख रहा. ओके ओके. हाँ, Less preference dividend 2,000. On all the years you will deduct 2,000. Earnings available for equity shareholders 600.
3,200 and 5,800. EPS 600 divided by 1,000 shares. 600 divided by number of shares 1,000, 0.6. 3,200 divided by 1,000 number of shares 3.2. 5,800 divided by 1,000 5.8. So as you can see, when there is sales increasing, EBIT, अभी यहाँ पे EBIT है, पहले वाले में सेल्स था. पहले क्या था, सेल्स से हम स्टार्ट करते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे. ये आगे का पार्ट है. EBIT क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, आपको इंटरेस्ट दिया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, टैक्स के बारे में दिया है और प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है. आपको ईपीएस तक जाना है, EBIT से ईपीएस तक जाना है. यानी हम रिलेशन बिटवीन क्या करना है, EBIT एंड EPS. पहले वाले में क्या कर रहे थे, एक मिनट यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे, सेल्स से EBIT तक जा रहे थे, तो हम रिलेशन बिटवीन द सेल्स और EBIT देख रहे थे. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बार वापस समझाती हूँ. ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग सेल्स और EBIT का रिलेशन ढूंढ रहे थे कि सेल्स कितना बड़ा, EBIT कितना बड़ा. सेल्स के वजह से तो डिनोमिनेटर में हम सेल्स ले रहे थे और न्यूमरेटर में EBIT ले रहे थे, राइट. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स ले रहे थे. वहां पे हम लोग क्या लेंगे, EBIT से EPS दिया हुआ है. फाइनेंशियल लेवरेज में EBIT से EPS तक जाना है और हमें रिलेशन क्या देखना है, EBIT कितना बड़ा, उसके वजह से EPS कितना बड़ा. तो डिनोमिनेटर में EBIT आएगा और न्यूमरेटर में EPS आएगा. कहाँ पे, फाइनेंशियल लेवरेज में. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे EBIT और EPS. परसेंटेज चेंज इन EBIT डिनोमिनेटर में आएगा और EPS न्यूमरेटर में आएगा. परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. You can see from the base EBIT increased by 81.25. This will be numerator and denominator will be 40%. 81.25 को 40 से डिवाइड करो. न्यूमरेटर में 81.25 डिवाइड बाय 40, 2.03 टाइम्स, 2.03 टाइम्स. यानी जब EBIT 40% से चेंज हुआ, उसने डायरेक्टली 81% से चेंज करवा दिया EPS को. A 40% increase in EBIT results in 81.25% increase in EPS. Similarly, in the second case, a 40% decrease, यहाँ पे माइनस दिख रहा है ना, ये क्या है, डिक्रीज इन EBIT. 40% डिक्रीज इन EBIT. 10,000 से EBIT कम हो गया था 6,000. 40% डिक्रीज इन EBIT leads to 81.25% डिक्रीज इन EPS. अब आपको समझ में आया, जब आप किसी ऑब्जेक्टिव का आंसर कर रहे हो तो मैंने अगर आपको दो ऑप्शंस दिए, फाइनेंशियल लेवरेज डैश, इट इज अ रिलेशन, क्वेश्चन के ऑप्शंस बता रही हूँ. फाइनेंशियल लेवरेज इज डैश, इट इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड EBIT और इट इज अ रिलेशन बिटवीन EBIT एंड EPS. तो आप सेकेंड ऑप्शन को टिक करोगे. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे टिक करोगे, इट इज अ रिलेशन बिटवीन EBIT एंड EPS. इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आ सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज डैश. ऑप्शंस, it is a relation between sales and EBIT. It is a relation between EBIT and EPS. तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, it is a relation between sales and EBIT. Okay, sales is denominator, percentage change in sales upon, उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा,
percentage change in EBIT. Percentage change in EBIT upon percentage change in sales. यहाँ पे क्या आ रहा है? Percentage change in EBIT upon percentage change in EPS. EBIT नीचे आएगा, EPS ऊपर आएगा. लिखो DFL is equals to degree of financial leverage is equals to percentage change in EPS upon percentage change in EBIT. खाली ये वाली फॉर्मूला लिखो जहां पे मेरा कर्सर है. हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए आंसर. ओके. लिखा आप लोगों ने फॉर्मूला DFL का. अभी ये सेकंड टॉपिक है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज. इसमें क्या करना है आपको? फर्स्ट फॉर्मूला लिखनी है ऑपरेटिंग लेवरेज की. ये ऑपरेटिंग लेवरेज की पहली फॉर्मूला है. परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है. फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ये सेकंड फॉर्मूला है फाइनेंशियल लेवरेज का. अब इसको EBIT और EBIT सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं? मैक्स में कैंसिल करते हैं ना. EBIT और EBIT न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम कैंसिल करेंगे. स्ट्राइक ऑफ करो. परसेंटेज चेंज इन EBIT ऊपर का और नीचे का कैंसिल करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? दूसरी परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. यानी जब भी हम कंबाइंड लेवरेज निकालते हैं तो हम EPS और सेल्स का कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं. इसकी फॉर्मूला दूसरी है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. आपको ये पूरा इक्वेशन लिखना है यहां से लेके यहां तक, DCL से लेके सेल्स तक, परसेंटेज चेंज इन सेल्स तक लिखो पहले.
ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला किसकी है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंबाइंड लेवरेज, सॉरी इसकी ऑपरेटिंग लेवरेज की फर्स्ट फॉर्मूला। उसके इनटू के बाद किसकी फॉर्मूला है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब ईबीटी। ये सेकंड फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज, ये ऑपरेटिंग लेवरेज, ये फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में ईबीआईटी है, डिनोमिनेटर में ईबीआईटी है, दोनों को कैंसिल किया। देखो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रही हूँ, ईबीआईटी ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, फॉर्मूला न्यू बन गया। यहाँ पे ये फॉर्मूला किसकी थी? ऑपरेटिंग लेवरेज की फॉर्मूला है, ये ओएल की फॉर्मूला है, और ये फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला है। ओएल की फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है कंबाइंड लेवरेज, सीएल। सीएल, डिग्री ऑफ सीएल निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। दो फॉर्मूला होता है हमेशा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आया तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें कंट्रीब्यूशन और ईबीटी दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो भी हम निकाल सकते हैं ओएल इंटू एफएल। यहाँ दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्टली आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी करो। ठीक है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब ईबीटी। All of you note down the formulas in your notebook. पहले OL की फॉर्मूला लिखो, फिर FL की, फिर DCL की। DCL की फाइनल ये वाली लिखना, ये वाली, ठीक है, ये फॉर्मूला DCL की है। पहले OL की फॉर्मूला लिखो, फिर फाइनेंशियल लेवरेज की लिखो, फिर कंबाइंड लेवरेज की लिखो, ऐसे वर्टिकल में लिखना। OL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT लिखा। सेकेंड फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT, डायरेक्ट EBT लिखो। फिर थर्ड नीचे CL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT लिखा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्मूला वर्टिकल में। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, आपको वर्टिकल एक एक अलग अलग लिखनी है। फर्स्ट ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, second financial leverage is equals to EBIT upon EBT, third combined leverage is equals to contribution upon EBT। या थर्ड का दूसरा ऑप्शन भी लिख सकते हो आप। थर्ड में दूसरा ऑप्शन ऐसे लिख सकते हो, OL into FL is equals to CL, ऑपरेटिंग लेवरेज into फाइनेंशियल लेवरेज is equals to combined leverage लिखा। थर्ड के दो ऑप्शन लिखने हैं, थर्ड में एक ये वाली फॉर्मूला लिखनी है, और थर्ड में ये पूरा आप लिख सकते हो 1 into 2 OL into FL is equals to CL। I hope you have understood। कंबाइंड लेवरेज में ये वाली फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, OL into FL is equals to CL। और उसके नीचे DCL का फॉर्मूला लिखो, DCL का ये वाला ही लिखो सिर्फ डायरेक्टली, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसके ऊपर सम्स आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, तो इसके लिए आप नोटबुक में अच्छे से फॉर्मूला लिख के रखो। फॉर्मूला याद होगी तो आप खुद ही सम को सॉल्व कर सकते हो।
Any doubts? Hello. Is it clear to all of you? Formulas note किया आप सबने? Write in the chat box yes or no. Hello.